permission. It's a synchronization and teamwork. In fact, it is a beautiful portrayal of discipline, unity, harmony, and grit. Our 4 houses have taken part in March Past under the guidance of Ms. Meena Srivastava. Now all of them are moving forward to hoist the flag. Right in front we have Fiza, class 9. On drum we have Mariam, and on side drum we have Fiza, and Shakufa, she is holding the flag of Alhambra Faruqi Girls College. Come writer, come an extraordinary orator, our philosopher, friend and guide. Now our manager ma'am, she is going to hoist the flag, and let's feel the fragrance of freedom. Very good. A big round of applause for these small students.
This is a teamwork with collaboration and coordination with each other. A huge round of applause, please. Now the next one. This shows harmony and strength and how they are stepping on one another, maintaining the balance. Very good, very good. This shows the balance and strength. Very good. Please keep on clapping. Audience, please keep on clapping. Very good. Shabash. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! Magnificent presentation. Very good. Okay, now stop. Very good. What a magnificent view. Wow. You all are looking fabulous. Very good. Please. And the fragrance of freedom. The feeling of being free and completely unburdened. It is hard to imagine without any discrimination of caste, race and status. Everyone is equal in the eyes of law. Now, let's start today's program with Urdu speech by Mehjabi class 10. It is prepared by Miss Salma. साहिबा, मोहतरमा प्रिंसिपल शबाना बेगम साहिबा और हमारी कोऑर्डिनेटर सूबिया मतलूब साहिबा, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया है। दस्तूर का आगाज है यौमे जमहूरिया, दस्तूर का आगाज है यौमे जमहूरिया, कानून की आवाज है यौमे जमहूरिया। मस्जिद सामीन, 26 जनवरी दरहकीकत ख्वाबों की ताबीर का दिन है और यौमे एहतसाब भी है। यानी हम गौर करें और सोचें कि हिंदुस्तान किन ख्वाबों की ताबीर था और वो ख्वाब किस हद तक पूरे हुए, ताकि वो मकसद हमारे पेशे नजर रहे जिनके लिए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी और अपने खूने जिगर से गुलशने हिंद की आबियारी की। आज़ादी का ये सफ़र बहुत मुश्किल था। सामीन, यौमे जमहूरिया एक कौमी दिन है जिसे पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हिंदुस्तान का आईन अमल में आया था और इसके साथ ही एक जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज हुआ। इसलिए आज के दिन को यौमे जमहूरिया कहा जाता है।
दस्तूरे हिंद में हमारे मुल्क को एक सेकुलर मुल्क कहा गया है, यानी ये मुल्क मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। तमाम मजहब का एहतराम जरूरी होगा। हर मजहब कानून की निगाह में बराबर है। हर मजहब, हर हिंदुस्तानी को आज़ादी राय है, आज़ादी ख्याल है और आज़ादी मजहब का इख्तियार हासिल है। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोग अपने अपने मजहब पर अमल करते हुए एक मुश्तरका तहजीब को फरोग दे रहे थे और मुल्क तरक्की कर रहा था। हमें भी कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए, आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने मुल्क की तरक्की में अपना भी हिस्सा दें, इसकी हिफाजत करें और इसे मज़ीद मजबूत बनाएं। आज हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत करेंगे, अपने वतन से मोहब्बत करेंगे। आइए मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत की फ़ज़ाएं बनाते हैं और मोहब्बत के ज़रिए नफ़रत का खात्मा करते हैं। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। शुक्रिया। Chief guest Dr. Bara Farooqi, Manager of the College. Today, as we gather to celebrate Republic Day, let us take a moment to reflect on the opportunities and responsibilities that lie ahead of us as citizens of this great nation. India is changing day to day to bring about meaningful change. The first step is to believe in yourself. Confidence in your abilities and dreams can help you achieve anything you set your mind to. It's not enough to dream about a better future. We must work hard and dedicate ourselves to make it a reality. Each one of you has the power to contribute, no matter how small your actions might seem. A simple act of kindness, speaking the truth, helping someone in need, being disciplined in your studies can make a significant impact. These small actions shape your character, in turn shape our nation. I urge you all to be curious, learn and grow each day. Embrace technology and education as tools to solve problems and improve lives. But always remember the values of honesty, compassion and unity. These values are the foundation of any great society. As we celebrate this Republic Day, let's pledge to work together for a brighter future. Let us respect our teachers and elders, stay focused on your goals and take pride in being responsible citizens of India. Together we can make our nation not only stronger but an inspiration for the world. I am incredibly proud of each one of you and excited to see how you will shape tomorrow. Thank you. I wish you all a very happy Republic Day. और अब चलिए लुत्फ अंदोज होते हैं एक लाजवाल सॉन्ग मेरे देश की धरती, और जिसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने सितारे।
बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे, कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हर ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। सोना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म दिया, इस धरती पे जिसने जन्म दिया, उसने ही पाया प्यार, पाया प्यार। अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सबके हाथ तेरा, सबके हाथ तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आजाद वतन मेरा वीरों की निशानी है, आजाद वतन मेरा, आजाद वतन मेरा वीरों की निशानी है। रखना संभाल इसको, रखना संभाल इसको, ये याद पुरानी है। रखना संभाल इसको, रखना संभाल इसको, ये याद पुरानी है। सारी सारी सनी सधानी धनी पद पद, सारी सारी सनी सधानी धनी पद पद, मा पद नि सा, मा पद नि सा, मा पद नि सा। मुगलों से लड़े राणा ना, सर को झुकाया है। मुगलों से लड़े राणा ना, सर को झुकाया है। भारत के लिए अपना ही खून बहाया है, भारत के लिए अपना ही खून बहाया है, खून बहाया है। इस मातृभूमि को दी, इस मातृभूमि को दी अपनी कुर्बानी है। इस मातृभूमि को दी, इस मातृभूमि को दी अपनी
Professor Bara Farooqi, Principal Mrs. Shabana Begum, Coordinator Mrs. Subia Mazloo, my teachers and my dear friends. Freedom in mind, faith in words, pride in our hearts. Today we are here to celebrate a very significant day, Republic Day. This day reminds us of our nation's proud journey as a free and self-governing country. 77 years ago, on this day, our nation became a republic, casting off the British rule. India embraced its own constitution written under the guidance of Dr. B.R. Ambedkar, which is more than just a set of rules. It stands for justice, liberty, equality, and fraternity. It reflects the hopes and dreams of our diverse population. It marked a new chapter in our history, a step towards shaping a brighter future for all its people. But Republic Day is not just about looking back. It's also about looking ahead. It is a time to reflect on how we can contribute to our country. It is a day to celebrate the freedom, to dream, to learn, to build a better future. It reminds us to embrace tolerance, kindness, and respect for one another, valuing the diversity that makes India unique. Together, we can make India a leader in many areas. As the youth of the nation, we have the power to make this happen through hard work and learning. Let us move forward together to create a brighter and stronger India. May the spirit of unity and democracy guide us always. From the Himalayas to the sea,
From the Himalayas to the sea, our republic is strong and free. Jai Hind. Thank you. अंबर हेठा धरती वसदी खेते हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिर गिराए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी करता के रंगे, जुगनी नौस्ते मुँह को कपड़े, जीव सत्य इश्क भी लगे, वैसा ही मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहती है, ओ नाम सही कर लेंदी है। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड और गुड़िया, इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। कौन सहे फिर पीड़ बाकी
कहीं से भी आता है। देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है मेरा।
तूफानों का, अलबेलों का, मस्तानों का इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, मेरे लिए जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आजा आजा जिंदू शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम भले खुशी गुलाम, सत्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय देश तिरंगा प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा।
याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, वो शहीद हुए जो उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। सभी लोग गाएंगे। है मेरे वतन के लोगों, जरा हाथ में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, वो शहीद हुए जो उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। सुखन दे रही हूँ, जिसको कि हम सब सुनने को बेचैन और बेकरार रहते हैं, और आपकी हिकमत भरी बातें हम सब के लिए इबरत का सबब बनती हैं। तो अब मैं बाअदब और एहतराम बुलाना चाहूँगी अपनी मैनेजर प्रोफेसर बारा फारूकी साहिबा को। मिसेस खन्ना जो इस वक्त यहाँ इस वक्त इत्तेफाक से नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अगले साल फिर से होंगी हमारे साथ, उनको भी मैं इसमें याद कर रही हूँ। और यहाँ मौजूद एक एक बच्चा और सारी हमारी प्यारी टीचर्स, सारे लोगों को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज के दिन मैं बचपन से बहुत खुशी महसूस करती आई हूँ। जैसे लगता था कि कोई सच में, जब मेरा बचपन था तो देश की उतनी उम्र नहीं हुई थी मेरे ख्याल में। आज़ादी का जो जोश था वो थोड़ा नया था इसके मुकाबले में, जो कि अब क्योंकि हमारा ये 75वां शायद यौम जमहूरिया है, तो जिस साल मैं पैदा हुई हूँ मेरे ख्याल से 20 साल का मुश्किल से 20वां 20th हुआ होगा रिपब्लिक डे। तो बहुत जोश होता था। मुझे याद है बचपन में जब मैं 3-4 साल की थी तो मैं अपनी मदर के साथ स्कूल जाती थी उनके, तो रास्ते भर झंडियाँ, लाउड स्पीकर, लोग खुशियाँ मनाते हुए, और बाकायदा सड़कों पे जिस तरह से आजकल धार्मिक वो जो होते हैं त्योहार, उन पे लोग ज़्यादा नज़र आते हैं, बल्कि राष्ट्र वाले जो त्योहार हैं वो तो सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों में, दफ्तरों में बंद होके रह गए। लेकिन दरअसल हमारा त्योहार आज का दिन और 15 अगस्त का दिन ही हर हिंदुस्तानी के लिए त्योहार का दिन होना चाहिए, क्योंकि इस दिन ने इसी दिन हम लोगों ने आज़ाद होने का मंसूबा बनाया और साथ आने का मंसूबा बनाया। यानी कि जैसे कि पहले पूरी दुनिया में ही ऐसा था बच्चों कि कोई एक पूरा जुड़ा हुआ एक देश नहीं होता था। मतलब जो नेशन है, नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले के ज़माने में नहीं था। छोटे छोटे राजा महाराजा होते थे, हर एरिया का अपना राजा होता था, अपनी रियासत होती थी।
तो वो लोग बस उतने ही में महदूद रहते थे। लेकिन एक वक्त आया जब 20वीं सदी आना शुरू हुई तो दुनिया में कई जगहों पे ये एक क्रांति पैदा हुई कि लोगों ने कहा कि हम अलग अलग बटे हुए छोटे छोटे राज्यों में क्यों ना मिल करके हम एक जो पूरा उस इलाके का जो जितनी जमीन है, जो रीजन है, वो मिल करके एक देश बनाएं। तो उसी तरह हिंदुस्तान में भी देश का जो आइडिया है ये बहुत ही देर में, यानी कि महात्मा गांधी ने और उन्हीं के साथियों ने, उनसे पहले कुछ लोगों ने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि जो भारत जो है वो भी बहुत सारे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आज भी राज्य तो है लेकिन सारे एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं। तो ये हुआ कि हम एक देश बनाएं, तो उसको सब मिल करके आए। जैसे कि लेकिन इस जो इलाका था, जो ये रीजन था, ये हिंदुस्तान कहलाता था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स जो है वो हिंदू कहलाता था, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं था, बल्कि हिंदू का मतलब था हिंदुस्तान में रहने वाला। हिंदुस्तान जो है वो एक पर्शियन का लफ्ज है, फारसी का लफ्ज है। तो अगर आप पहले के बयानात सुनिए, जो ईरान से या इराक से ट्रैवलर्स आते थे, जिन्होंने लिखा है अपनी किताब, जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं जब हम कहीं जाते हैं तो हम लिखते हैं ना कि हम नैनीताल आए हुए हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसी झील है, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ का मौसम ऐसा है। तो लोग आते थे पिछले जमानों में भी, वो भी लिखते थे कि हम हिंदुस्तान आए हैं। तो कई जगह के बयानों में है कि फला मस्जिद में 4 हिंदुओं को नमाज पढ़ते हुए जाते देखा, क्योंकि उनकी नज़र में हिंदू लफ्ज जो था वो कोई मजहब से वो नहीं था। और ये मुस्लिम लफ्ज या मुसलमान ये इसलिए आया है कि इसको मतलब कि इस्लाम के मानने वालों को बताने के लिए, तो इसको मुसलमान कहने लगे। लेकिन ये अंग्रेजों ने आकर के हम लोगों को बांटने की कोशिश में उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही अलग अलग धर्म के मानने के लोग एक ही कहलाएं। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे अपने देशों में उन लोगों ने जो है बंटवारा ये सब नहीं करवाया। वहाँ पे तो उन्होंने ये सिखाया कि सब मिल के रहो, सब एक ही वो है, और उन्होंने अलग अलग नाम नहीं रखे। लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि जबानों के नाम भी अलग कर दो, हिंदी का नाम अलग होना चाहिए, उर्दू अलग होना चाहिए। पहले ये एक ही जबान मानी जाती थी, उसका भी उन्होंने नाम अलग करवाया, क्योंकि उनका मकसद तो यही था कि लड़वाना है आपस में। तो उन्होंने लड़वाने के लिए उन्होंने इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, धर्म को, और लोगों के दिलों में भी इस भावना को पैदा किया। लेकिन हमारे बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, और हमारे जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर अम्बेडकर, इन लोगों ने सबने मिल करके इस आइडिया को कैंसिल किया कि नहीं, ये इंडिया का जो आइडिया है वो एक मिली जुली आइडेंटिटी, मिली जुली तहजीब का आइडिया है, और धर्म से बढ़ के देश होता है। आप ये देखिए, अगर आज आप इलाहाबाद से बाहर निकल के कहीं चले जाएं तो आपको ये कोई नहीं कहेगा कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू की सिख, लेकिन ये कहेंगे कि ये यूपी की हैं, ये यूपी से आई हैं या इलाहाबादी हैं। तो जिस जगह को आप बिलोंग करते हैं, जो आपकी मिट्टी होती है, वो आपकी परिभाषा होती है, वो आपको डिफाइन करती है। इसीलिए हमें अपने जो देश है, जो हम जिस जगह पैदा हुए हैं, जहाँ की तहजीब, जहाँ का पानी हमने पिया है, जहाँ का रिस्क हमने खाया है, अगर हम उससे वफादार नहीं हैं तो हम अपने मजहब से भी वफादार नहीं हैं। तो खास तौर से फॉरेन कंट्री में आप जाइए जब, तो वहाँ पे सारे हिंदुस्तानी एक से हैं। अच्छा, देखने में क्योंकि शक्लें बिल्कुल सिमिलर है, तो पाकिस्तानी और इंडियंस के बीच में फ़र्क नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी को इंडियन समझ लेते हैं, इंडियंस को पाकिस्तानी समझ, क्योंकि दरअसल तो ये एक ही ज़मीन थी, एक ही जगह थी। अंग्रेज़ों ने कमज़ोर करने के लिए हम लोगों को इस कदर फूट डाली और डिवाइड किया कंट्री को। लेकिन आज की डेट में हमारे सामने ये चैलेंज है कि हम दोबारा इस तरह की बातों में ना आकर के और एक दूसरे को पहचाने कि हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, क्योंकि
हमारी सभी गंगा मैया का पानी पीते हैं, सभी जो रिवर्स हैं गंगा जमुना, या फिर पंजाब में जो 5 रिवर्स हैं, जहाँ से पंजाब जो सबसे ज़रखेज़ है हमारी कंट्री का, जहाँ से गेहूँ हमें सबसे ज़्यादा उसमें मिलता है, जो पूरी कंट्री को फीड करता है, यानी कि जो खाना हम खाते हैं, तो वो सब एक ही सी ज़मीन है। और आपको तो पता है साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि खून का अगर आप टेस्ट कराने चाहिए तो उसमें कोई पता ही नहीं चलता कि ऊंची जात का खून है कि नीची का, या फिर मुसलमान का है या सिख का है, क्रिश्चियन का है, हिंदू का है। तो खून जब एक है तो इसका मतलब हमारा बनाने वाला भी एक है, और जहाँ के हम पैदावार हैं वहाँ की मिट्टी हमें जोड़ती है। तो इसलिए हमें आज का दिन खास तौर से हम एक दूसरे को याद दिलाएं और अपने दिल में भी याद रखें कि हम सब जो हैं हिंदुस्तान के बच्चे हैं, और हिंदुस्तान ही हमारा बाप माँ सब कुछ है। और जहाँ भी हम जाएंगे, चाहे लाख हम अपने आप को दिखाएं कि हम फलाने हैं ढिमकाने, लेकिन हमको हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसी से हमको डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको अपनी आइडेंटिटी को पहचानना चाहिए कि हम इंडियन हैं, और फिर इंडियन होकर के हम जिस जगह रहते हैं उसके तौर तरीकों को आपस में एडजस्ट करके एक दूसरे के खाने पे कमेंट ना करना, एक दूसरे के ड्रेसेस पे कमेंट ना करना, ये सब चीज़ें सच्ची मोहब्बत है वतन के लिए। और बाकी तो ये हम लोग कर लेते हैं कि नारे वारे लगा दिए और इस तरह के अपना झंडे वंडे फहरा के कर दिया, लेकिन दरअसल मोहब्बत वतन की ये है कि हम एक दूसरे को गैर ना समझें, और अपने जिन लोगों ने वाकई, जैसा कि पुष्पलता ने इतना बहुत ही गैर मामूली गाना है ये, कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब वो बॉर्डर पे आज भी जब लड़ाई होती है, बंदूक चलती है, तो ये थोड़ी ना देखती है बंदूक की मुस्लिम को गोली लगी है कि हिंदू को, बल्कि जब लड़ाई होती है तो हम जानते भी नहीं कि हम किसको मार रहे हैं। जैसे बम गिराया कहीं पे, तो कौन लोग थे वो, हमें उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमको कहा गया है कि फला जगह बमबारी करो, तो वहाँ हमने जाके बमबारी कर दी। तो ये जो जंग है, ये वॉर जो है, ये बहुत ही ऐसी बेहुदा चीज़ है, और इसको हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए अवॉइड करने की। हमें कोशिश करनी चाहिए बातचीत करके जो मामला सुलझाया जा सकता है, वो कभी लड़ाई से या बंदूकों से नहीं सुलझाया जा सकता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि जिसको हम पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं, वो हमारे हाथ से क्यों कत्ल हो, या हम उसके दुश्मन क्यों हो। ठीक है, अगर हम कोई हमारा प्रॉब्लम है भी किसी देश के साथ, तो हम उसको सहूलियत से सुलझा सकते हैं। जिस तरह से हम अपने स्कूल के अंदर भी आपस में हम एक होके चले कि हम सब अलहम्रा के बच्चे हैं, और अलहम्रा की शान की खातिर हमें मिल करके आगे बढ़ना है। ठीक है ना। अगर आपका स्कूल बड़ा होगा, नाम होगा, तो किसका नाम होगा? आप लोगों का नाम होगा। जैसे आजकल लोग जैसे इम्प्रेस हो जाते हैं, अच्छा सेंट मैरीज में पढ़ते हो, तो क्यों इम्प्रेस हो जाते हैं? क्योंकि स्कूल का नाम बड़ा है ना, वहाँ उसने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और इस स्कूल का स्टैंडर्ड कौन बनाएगा? आप लोग बनाएंगे। तो अगर आप रेगुलर आएंगे स्कूल, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे, तो लोग कहेंगे अरे भाई ये कौन सा स्कूल है, ये तो नाम सुनने में पहली बार आ रहा है, अलहम्रा। अच्छा, ऐसा भी कोई लोग आएंगे बाकायदा देखने। देखिए कल्पना चावला कितने मामूली से गांव की पैदावार थी, वो कितने छोटे से हरियाणा के एक विलेज में वो स्पेस में चली गई। आज उसका स्कूल, उसका मतलब पूरे दुनिया में लोग कहीं से घूमने आते हैं तो लोग जाते हैं वो देखने कि हाँ भाई कौन सा स्कूल है जहाँ कल्पना चावला पढ़ी थी, है ना। तो हमारी भी जो वतन से मोहब्बत है वो इसी तरह होनी चाहिए। पहले हमें अपने घर से, अपने रीजन से, हम अपने शहर से, अपने स्कूल से मोहब्बत करें, और वो एक तरह से मोहब्बत है वतन के लिए। तो हम भी कुछ ऐसा करें कि लोग याद रखें कि हाँ हमारा स्कूल में भी, इस स्कूल में भी कोई बच्चा या कोई बच्ची ऐसी पढ़ती थी जिसने कोई कारनामा अंजाम दिया है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। और मैं समझती हूँ कि प्रोग्राम बहुत अच्छा था, ये भी कहना ज़रूरी है। और बच्चों ने इतने अच्छे डांसेस किए और गाया, मतलब स्पीचेस भी बहुत अच्छी थी। एकदम देख करके ऐसा दिल चाहता है कि कैसे मैं पूरी दुनिया के सामने आप लोगों को ले आऊँ कि देखो कितने अच्छे हैं हमारे बच्चे, और कितनी फीलिंग के साथ, जज्बे के साथ प्रोग्राम होता है।
और मेरे दिल में यही दुआ है कि आप लोगों का स्कूल और आपका काम जो है वो दिन ब दिन दुनिया के सामने आए और आप लोगों का नाम हो और आपकी ज़िंदगियाँ भी कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.
शुक्रिया।